Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will learn regarding the photogrammetry, lesson number 2, where we will learn regarding the scale of photograph. So dear friends, इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि photogrammetry is one of the important element that we have to carry out for surveying. So aerial survey, terrestrial photogrammetry, all these we are using to prepare the map by taking the photographs of the different ground area. And for that we have seen some of the concepts in the photogrammetry. तो हमने देखा है कि हम लोग एक जगह कैमरा ऐसा हवा में हेलीकॉप्टर पे रख सकते हैं, एरोप्लेन पे रख सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज द ड्रोन, और हम लोग ऐसा फोटोग्राफ ले सकते हैं. सो जब हमारा कैमरा का एक्सिस बिल्कुल ऐसा वर्टिकल रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ. बट वर्टिकल फोटोग्राफ इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल. तो आपका एक्सिस 100% परपेंडिकुलर रहेगा ही नहीं. प्लम लाइन को बिल्कुल परपेंडिकुलर, प्लम लाइन जो है हमारी, उसको बिल्कुल कैमरा एक्सिस पैरेलल नहीं रहेगा. तो कैमरा आप एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं पकड़ सकते. सो देयर मे बी ए स्मॉल टिल्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज tilted photograph. So whenever we are taking the aerial photograph, the photograph may not be exactly vertical, but it may be a tilted photograph. So tilted photograph that also we have seen. अब ये जो फोटोग्राफ हमने टिल्टेड किया है, उसके अलावा हम लोग तिरछा फोटोग्राफ भी ऐसा ले सकते हैं ग्राउंड का टेरेन पर से. तो फ्रॉम हायर हाइट we will take the photograph of the down ground. So in that case the camera axis is inclined, और ऐसे केस में जो हमारा फोटो निकलता है that we have seen it is called as oblique photograph. अब ऑब्लिक फोटोग्राफी में दो टाइप हमने देखे थे कि एक तो हमको यदि आसमान दिख रहा है और हमारा जो होराइजन है, जो हमारा जहाँ पे हमारा आसमान हमारे जमीन को मिलता हुआ दिखाई देता है, क्षितिज जिसको हम लोग बोलते हैं, होराइजन इज विजिबल इन द फोटोग्राफ, दैट इज कॉल्ड एज हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ. और फिर यदि सिर्फ आपको जमीन दिखाई दे रही है और अपनी ऊंचाई से ऐसा तिरछा फोटो निकाला है, सो दैट इज कॉल्ड एज लो ऑब्लिक फोटोग्राफ. तो ऑब्लिक फोटोग्राफ की भी तीन हमने टाइप देखे थे. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन various basic concepts regarding the photogrammetry, and then how the camera works, that also we have seen. So from the camera lens, the rays of the light pass into the camera through the lens, and the inside the camera on the sensor the photograph is formed. Actually that photograph is a negative photograph, because the rays coming in left direction goes and enters into the right direction. From right direction they comes and go to the right. From top the light rays come and go down. So likewise the negative image of the whatever the object was there, that was formed inside the camera, and then that we have to make it positive. So in the camera we have seen that at the focal point एक तरफ हमारा प्रिंसिपल प्लेन होता है और एक तरफ हमारा कैमरा प्लेन होता है. तो कैमरा प्लेन पे आपकी इमेज बनती है निगेटिव, लेकिन हम लोग जब कैमरा में से देखते हैं तो आपको जो भी दिखता है वो पॉजिटिव दिखता है. सो दैट इज कॉल्ड एज पिक्चर प्लेन. सो वॉट एवर वी आर सीइंग थ्रू द कैमरा, दैट इज ऑन द पिक्चर प्लेन, एंड देन इट वाज गेट निगेटिव ऑन द कैमरा प्लेन, एंड दैट वी कैप्चर with the help of camera film or with the help of digital sensor, and then we create the photograph. Now from this photograph the important work is हमको उसमें से डायमेंशन एक्सट्रैक्ट करने होते हैं. तो किसी भी चीज की ऑब्जेक्ट की जो भी लंबाई चौड़ाई है, या फिर उसका जो हाइट है, एलिवेशन जो है, या उसका दो ऑब्जेक्ट में का डिस्टेंस है, लेंथ है, ऑल दैट, ये सारी चीजें हमको मैप फोटोग्राफ पे से निकालनी होती है. एंड दैट इज एक्चुअली द यूज ऑफ फोटोग्रामेट्री. So we are taking the photograph of a ground topography, and then in the office with the help of some mathematical calculation and some formulas, and we are trying to extract the distances or the bearing or the location or the coordinate or the elevation or the height of the object. So that helps us to prepare the map of that particular area. अब ये करने के लिए हमको जो डायमेंशन एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड एज स्केल ऑफ द फोटोग्राफ. सो दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो बिफोर गोइंग टू दिस स्केल, we will first understand the relation between the principal point and
प्लम पॉइंट एंड आइसोसेंटर, तीन चीजें हमको यहाँ पे हमने इसके पहले भी देखी है. सो वन इज प्रिंसिपल पॉइंट. अब आप यहाँ पे देखेंगे, सो सपोज दिस इज नाउ माय ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड है और मैं ग्राउंड का ऊपर से फोटोग्राफ ले रहा हूं. सो माय ओ इज माय एक्सपोजर स्टेशन. तो यहाँ पर मेरा कैमरा है और मैं यहाँ से नीचे के ग्राउंड का फोटो मैं ले रहा हूं. सो हियर द वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड एज प्लम लाइन. दिस इज द प्लम लाइन और डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी विच इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस. ये जो लाइन है इस पे मेरा यदि कैमरा एक्सिस होता है एग्जैक्टली, सो मेरा फोटोग्राफ वर्टिकल निकलेगा. बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. तो हो सकता है कि आपका कैमरा एक्सिस जो है वो थोड़ा सा तिरछा हो. सो इन दिस केस दिस डायरेक्शन इज शोन, दिस इज द लाइन विच इज कॉल्ड एज कैमरा एक्सिस. यानी मेरा कैमरा एक्सिस थोड़ा तिरछा है. सो इट मे बी अप टू 3 डिग्री. सो 1 to 2 डिग्री, 3 डिग्री. सो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल इज टर्न्ड एज टिल्ट ऑफ द फोटोग्राफ. सो दिस इज द टी. अब जब यहां से कैमरा से फोटो निकाल रहे हैं हम लोग, सो दिस इज एक्चुअल ग्राउंड एंड दिस इज अवर पिक्चर प्लेन. तो पिक्चर प्लेन पे आपका फोटोग्राफ बन रहा है. सो दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस एफ. तो एफ डिस्टेंस जो है आपका फोकल डिस्टेंस है. फोकल डिस्टेंस पे आपका एक पॉजिटिव प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर फोटोग्राफ तैयार हो रहा है. और ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ के लिए जो कैमरा एक्सिस ये प्लेन को इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज के. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल पॉइंट. तो आपकी ये होगा, ये होगी कैमरा एक्सिस. और कैमरा एक्सिस जहां पे आपके प्रिंसिपल प्लेन को टच होता है वो हो गया आपका प्रिंसिपल पॉइंट के. इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओ ओरिजिन. यहाँ पे आपके एक्सपोजर स्टेशन कैमरा का सेंटर है. तो यहां से आपका फोकल डिस्टेंस के ऊपर प्रिंसिपल पॉइंट के है एंड विच इज अलोंग द कैमरा एक्सिस. अब हमने यदि ये कैमरा एक्सपोजर स्टेशन जो है यहां से यदि प्लम लाइन ड्रॉप की, तो वो ग्राउंड को जाके यहां पर मिलेगी एन पे. दिस इज परपेंडिकुलर प्लम लाइन टू द अर्थ सरफेस. सो दैट एन इज कॉल्ड एज नादिर पॉइंट. दैट एन इज कॉल्ड एज नादिर पॉइंट. सिमिलरली एट द डिस्टेंस, ये कैमरा एक्सिस भी आपका ग्राउंड को मिल रहा है कहीं तो भी. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कैपिटल के. सो दैट इज प्रिंसिपल पॉइंट ऑन द ग्राउंड. दिस इज प्रिंसिपल पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड दिस इज नादिर पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब ये दोनों के इक्विवेलेंट पॉइंट आपके फोटोग्राफ पे भी रहेंगे. सो स्मॉल के इज द प्रिंसिपल पॉइंट ऑन द पिक्चर प्लेन एंड स्मॉल एन इज ऑल्सो द नोडल पॉइंट ऑन द पिक्चर प्लेन. तो ये दो पॉइंट आपको मिल गए. सो इफ यू calculate this distance, so that distance you can also calculate distance nk. So nk is the distance of nadir point n from the principal point k. तो principal point से nadir point का distance that is called as nk and that distance is referred as distance of nadir point from the principal point and that is can be calculated as f tan theta, f tan t because t is our tilt angle. t tilt angle है और ये focal distance है. एंड दिस एंगल इज परपेंडिकुलर. ये प्लम लाइन को ये लाइन परपेंडिकुलर है. सो यू विल गेट एफ tan t. दैट विल बी द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस एन के यू कैन कैलकुलेट एज एफ tan t. देन के आई इज द डिस्टेंस ऑफ आइसोसेंटर आई फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट के. अब ये जो पॉइंट जो है एन पॉइंट और के पॉइंट ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो एंगल है टिल्ट का, ये टिल्ट के एंगल को यदि आपने बाइसेक्ट किया तो यू विल गेट अनदर लाइन. तो ये बाइसेक्ट की वाली लाइन यहाँ पर जो प्लेन को मिल रही है, दैट इट इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई एंड दैट आई इज कॉल्ड एज आइसोसेंटर. अब ये जो आइसोसेंटर है इसका डिस्टेंस होगा के आई. सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ आइसोसेंटर एंड विच इज अगेन एज एफ tan t by 2. क्योंकि अब यहाँ पर टिल्ट जो है वो आधा हो गया क्योंकि अपने एंगल को बाइसेक्ट किया यहाँ पर. सो दिस हाफ एंगल इज t by 2. सो हियर यू कैन गेट के आई इज इक्वल टू एफ tan t by 2. सो t इज द tilt angle. Similarly, KH, that is the distance along the principal line from the principal point to the horizon point. K. तो आपका ये H पॉइंट है जहां पे आपकी जो NK लाइन है ना, ये होराइजन को जाके यहाँ पे मिल रही है. सो दैट इज द डिस्टेंस KH. सो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन पॉइंट. तो KH जो है वो हो जाएगा F cot थीटा, क्योंकि ये भी एंगल टिल्ट के इतना ही होगा बराबर यहाँ पे. तो ये डिस्टेंस है फोकल डिस्टेंस f. तो यहां से ये एंगल मेरा परपेंडिकुलर है. सो दैट लाइन KH इज कॉल्ड एज f cot t. सो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट टू द होराइजन पॉइंट. ये आपको यहां से मिलेगा. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस t इज द एंगल ऑफ टिल्ट
एंड दैट एंगल इज ऑलवेज देयर, क्योंकि हम लोग कैमरा 100% वर्टिकल नहीं पकड़ सकते, सो ऑलवेज देयर इज द पॉइंट टी. सो नाउ फ्रॉम दिस कंसेप्ट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब आपका जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड का फोटोग्राफ आपके ये पिक्चर प्लेन पे बन रहा है. तो ये जो डिस्टेंसेस है इसको कंपेयर करके हम लोग हमारे फोटोग्राफ की क्या स्केल होंगी वो हम लोग निकाल सकते हैं. तो अब आपको क्या है, ग्राउंड पे डिस्टेंस है एन के और यहाँ पर डिस्टेंस है स्मॉल एन के. सो यू कैन कंपेयर दीज डिस्टेंसेस एंड फ्रॉम दैट यू कैन फॉर्मुलेट द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ. अब ये स्केल ऑफ द फोटोग्राफ हमको फॉर्मुलेट करना है, दैट यू विल सी हियर. So now here you have to understand how the scale of vertical photograph is calculated or how we take into consideration. So first of all, as we have to see that here as a photograph is a perspective projection. हमेशा याद रखिए कि फोटोग्राफ जो है आपका perspective projection होता है, यानी आप जब फोटो ले रहे हो तो दूर की चीजें आपको छोटी दिखाई देंगी, पास की चीजें आपके पास बड़ी दिखाई देंगी. So like way it is a photograph where द ऑब्जेक्ट स्केल इज चेंजिंग, यानी जितना ऑब्जेक्ट आपसे दूर गया उसकी हाइट साइज कम होती जाती है फोटोग्राफ में, बिकॉज फोटोग्राफ वी आर टेकिंग ऑन ए 2D प्लेन एंड एक्चुअल रियल वर्ल्ड इज 3D. लेकिन वो 3D लाइंस को आप पर्सपेक्टिव प्लेन पे बना रहे फोटोग्राफ, सो देयर दैट यू हैव टू कंसीडर. सो इन दैट रिस्पेक्ट द फोटोग्राफ इज ए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द इमेज ऑफ द ग्राउंड पॉइंट्स आर डिस्प्लेड वेयर देयर आर वेरिएशंस इन द ग्राउंड एलिवेशन. वो मैंने जैसा बताया कि आपको हर एक जगह की पॉइंट की ऊंचाई भी कम ज्यादा है. जैसा हम लोग सामने से फोटोग्राफ निकाल रहे हैं वैसा ऊपर से फोटोग्राफ निकाल रहे हैं तो सभी हिल तो आपको जगह पे दिखेगी, लेकिन हर एक हिल की जो हाइट है ये आपकी कम ज्यादा है. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एलिवेशन ऑफ द डिफरेंट ग्राउंड पॉइंट्स इज डिफरेंट एट द डिफरेंट लोकेशन, और हम लोग फोटोग्राफ उसका निकाल रहे हैं. सो एज शोन इन द फिगर, इमेज ऑफ द 2 points A and A0 is vertically above each other. So now we will understand with this photograph. So here what actually we are doing, so this is our ground, this is our ground. Now on this ground we are taking the photograph from point O. So this is our O exposure station, this is exposure station. So from exposure station, that is the center of the camera, this is our plumb line, this is vertical plumb line, and whatever the direction was there, हम लोग कैमरा को नीचे देख रहे हैं. So suppose now this is the point A which is on the ground, और ये ग्राउंड पॉइंट का इक्विवेलेंट पॉइंट है हमारा A0 which is on the mean sea level. So this is our datum. datum बोले तो ये हमारा mean sea level है. अब ये mean sea level से हमारा ग्राउंड जो है वो H इतने ऊंचाई पर है. So elevation of the ground is here H above the mean sea level. So this is MSL or which is called as datum. So actually हमको MSL का जो लोकेशन है A0, ये A0 हमारा मीन सी लेवल पे है, उसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल पॉइंट है यहाँ पर K0. तो दिस इज ओके. लेकिन हमारा ग्राउंड यहाँ पर नहीं है MSL पे, हमारा ग्राउंड ऊंचाई पर है. कितने ऊंचाई पर है? H. सो H इज द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड. तो ये A0 पॉइंट हमारा एक्चुअली ग्राउंड पे यहाँ पर होगा A पे. So therefore the principal point will be also at this point K. तो ग्राउंड पे आपका प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पर है और आपका ओरिजिनल जो पॉइंट है जिसका फोटोग्राफ आप निकाल रहे हैं वो A है. अब हम लोग यदि इस पे से फोटोग्राफ निकाल रहे तो फोटोग्राफ आपका बनेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस F. तो यहाँ पे आपका पिक्चर प्लेन पे आपका फोटोग्राफ बनेगा. अब ये फोटोग्राफ पे आप एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर देखेंगे. सो फ्रॉम द मीन सी लेवल मैं H इतने हाइट के ऊपर खड़ा हूं. H इज द एक्सपोजर हाइट. सो हाइट ऑफ द फ्लाइट, या कैमरा कितने ऊंचाई पर है, तो इट इज डिस्टेंस ऑफ H मीटर, कैपिटल H. तो मीन सी लेवल से कैपिटल H इतने ऊंचाई पे हमारा कैमरा रखा है और यहां से हम लोग नीचे का फोटोग्राफ ले रहे हैं. तो हमारा फोकल डिस्टेंस की दूरी पे पर्सपेक्टिव प्लेन पे हमारा पिक्चर प्लेन पे हमारा फोटोग्राफ तैयार हो रहा है. अब सपोज लो हमारा यदि पॉइंट डेटम पे रहता था, A0 इज पॉइंट ऑन द डेटम. अब A0 का यदि हम लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं तो ये फोटोग्राफ में A0 जो पॉइंट है ना वो आपको फोटोग्राफ में यहां पे दिखाई देगा. एक्चुअली इट विल बी सीन एट A0. लेकिन यदि मेरा पॉइंट अभी ग्राउंड पर है A पे और मैं ग्राउंड का फोटोग्राफ ले रहा हूं तो ग्राउंड के फोटोग्राफ लेते समय A पॉइंट जो है मेरा फोटोग्राफ में यहां पे दिखेगा. इट इज एट द लोकेशन स्मॉल A.
तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि यदि मेरा ग्राउंड डेटम पे पॉइंट है तो वो यहाँ दिख रहा है, और यदि उसका एलिवेशन बढ़ गया तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गया इधर, तो ये यहां पर आ गया. So it means that as the elevation of the ground changes, the position of the object on the photograph that also changes. तो फोटोग्राफ में आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी. तो चेंज होगी तो कैसी चेंज हो रही है? अब यहां पे देखिए कि मीन सी लेवल पे यदि आपका पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है, तो वो आपका प्रिंसिपल पॉइंट के जो है यहाँ पर, के से थोड़ा करीब होगा यहाँ पर. तो दिस डिस्टेंस के A0, दिस इज A0, स्मॉल A0. तो K0 डिस्टेंस हमारा कम है बिकॉज द पॉइंट इज ऑन द डेटम. लेकिन जैसा जैसा हम ये पॉइंट को ऊंचाई पे जा रहा है, हमारा एलिवेशन मिल रहा है पॉइंट को, तो एलिवेशन की वजह से ये पॉइंट हमारा इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट. सो व्हेनेवर देयर इज ए एलिवेशन टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का एलिवेशन यदि बढ़ रहा है यहाँ पे, सो h इज द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इंक्रीजिंग. सो द पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ is going away from the principal point. तो प्रिंसिपल पॉइंट से आगे आगे जा रहा है हमारा लोकेशन. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो फोटोग्राफ देख के हमको पता करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल पॉइंट फोटोग्राफ में कहाँ है और वहां से कितने दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. सो जितना ज्यादा ऊंचाई होगी ऑब्जेक्ट की, तो वो उतना प्रिंसिपल पॉइंट से दूर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट आपको एज कंपेयर टू अदर पॉइंट्स. So that concept we have to understand here. So for this point, so if we consider that these are the A and A0, this is the ground point and this is the point on the MSL, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाले स्मॉल a और स्मॉल A0, ये दो पॉइंट हमारे फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं हमको. सो ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमने देखा है अभी कि ये पॉइंट इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट देर इज नो यूनिफॉर्म स्केल बिटवीन द पॉइंट. सो ये पॉइंट हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पे. तो हर एक पॉइंट के लिए आपके फोटोग्राफ की स्केल अलग अलग होगी. तो यदि आपको फोटोग्राफ से ऑब्जेक्ट की हाइट या डिस्टेंस पता करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा द स्केल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट इन द फोटोग्राफ. क्योंकि फोटोग्राफ में का हर एक पॉइंट नीचे ऊपर है, तो जो पॉइंट का जितना एलिवेशन है उसके हिसाब से उसकी स्केल चेंज होगी. एंड अकॉर्डिंगली एट द वे इन द टोटल फोटोग्राफ द स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म. सो हियर द एक्सेप्ट वेयर द ग्राउंड पॉइंट्स हैव द सेम एलिवेशन. सिर्फ ग्राउंड के पॉइंट्स जो रहेंगे आपके मीन सी लेवल के पॉइंट्स, उसका यदि एलिवेशन एक सेम जैसा है तो फोटोग्राफ में उसके सबकी स्केल एक जैसी रहेगी. लेकिन पॉइंट्स नीचे ऊपर हो गए तो आपके हर एक पॉइंट की फोटोग्राफ में के हर एक पॉइंट की जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. सो स्केल चेंजेस एज द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस. दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द वर्टिकल फोटोग्राफ. सो दैट conclusion we have drawn on this. Now based on this we will try to derive the formula for the scale of the photograph. So here we will try to define that formula. So if the elevation of the point varies, so that already also we have discussed earlier, यदि मेरा पॉइंट का एलिवेशन वेरी होता है, then the scale of the vertical photograph will also vary. जैसा अभी मैंने बताया आपको, elevation of the point is varying, so scale of the photograph is also varying from the point to point. अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग स्केल होगी. So that also you have to remember. This is the very important point you have to remember. Then when all the points are having the same elevation, तो सारे पूरे फोटोग्राफ में जो सारे ऑब्जेक्ट है उसकी सबकी स्केल एक ही रहेगी. So that is also you have to remember. अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लेवल पे है एंड द ग्राउंड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड है, तो उसका फोटोग्राफ हमने ऊपर से लिया. सो वी विल कंसीडर दैट दिस एस इज द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ. तो ये जो एस है ये हो जाएगा हमारा. सो स्केल इज इक्वल टू, यू कैन से दैट मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस. मैप डिस्टेंस बोले तो फोटोग्राफ में का डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस बोले तो ओरिजिनल डिस्टेंस. सो कोई भी स्केल निकालनी है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस करना पड़ेगा.
अब इस केस में हमारा जो मैप डिस्टेंस है, यानी हमारा ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, के ए। सो स्मॉल के ए इज द मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल के कैपिटल ए, यानी ये हो गई हमारी स्केल। सो एस इज इक्वल टू के ए अपॉन के। अब ये के ए और के ए इसका कंपेरिजन यदि हम लोग कर दें, सो दिस इज फ्रॉम द स्टेशन ओ, सो दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अनदर राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी कैन कंपेयर फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो के ए है ये हमारा कितने दूरी पर है, एफ दूरी पर है। सो और यू कैन से इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ ओके। सो दिस इज ओ स्मॉल के डिवाइडेड बाय कैपिटल ओ कैपिटल के, यानी ओ के इसके प्रोपोर्शन में स्मॉल के है और कैपिटल ओके के प्रोपोर्शन में कैपिटल के प्रोपोर्शन में। सो वी कैन हैव दिस प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मूला। अब ये ओके जो डिस्टेंस है ये है हमारा फोकल डिस्टेंस। सो यू कैन से दैट एस इज इक्वल टू एफ, बिकॉज ओके इज द फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस। सो एफ एंड कैपिटल ओके, कैपिटल ओ से के तक। अब ये ओ से के तक कितना होगा, तो आपका हमारा एक्सपोजर स्टेशन है एट द हाइट एच। सो दिस इज द एच इज द हाइट ऑफ द फ्लाइट। एच इतने ऊंचाई पर आपका कैमरा रखा था मीन सी लेवल के ऊपर, लेकिन ग्राउंड का एलिवेशन आपका एच है, तो इतना बच गया डिस्टेंस आपका h माइनस एच। सो दिस इज द डिस्टेंस h माइनस एच। सो दिस इज h माइनस एच, एंड दैट इज एक्चुअली द स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ। s is equal to f upon h minus h. So where f is the focal length of the camera, small h is the height of the ground above mean sea level, height of the ground above mean sea level, and capital H that is the height of the exposure station above the mean sea level. यानी कितने ऊंचाई पे आपने कैमरा रखा है फोटोग्राफ लेने के लिए मीन सी लेवल के ऊपर, so that is capital H. So here we have to remember the formula of scale of the vertical photograph is s is equal to f upon h minus h. So f is the focal distance, h is the height of the exposure station, and small h is the elevation of the ground point. So that way we can calculate the scale of the vertical photograph. Now there is little change in this formula. We have to remember how this is happens. अभी तो हमने ये एक ही पॉइंट के लिए देखा है। अब यदि हमारा ग्राउंड में अलग अलग पॉइंट्स है, एक ही फोटोग्राफ में एक हिल का फोटो, आपका कम हाइट वाली हिल है, एक दूसरी हाइट वाली हिल है, तो ग्राउंड इज नॉट प्लेन। इसके पहले के केस में हमने देखा कि ग्राउंड हमारा प्लेन है, लेकिन हमारा ग्राउंड प्लेन नहीं है अभी, तो अलग अलग पॉइंट्स है और उसका हमने फोटोग्राफ निकाला ऊपर से। सो व्हाट विल हैपन, सो ये हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। सो यू कैन सी हियर दैट व्हेन द पॉइंट्स आर नॉट हैविंग द सेम एलिवेशन, सो लेट ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स हैविंग द एलिवेशन ऑफ एच ए एंड एच बी। तो अब हम लोग ये वाली केस कंसिडर करेंगे। इस केस में आपका ये जो है ये है मीन सी लेवल, दिस इज डेटम, दिस इज एमएसएल, दिस इज आवर एमएसएल। अब एमएसएल के ऊपर का हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, सो दिस इज ओ एक्सपोजर स्टेशन, यानी कैमरा सेंटर है यहाँ पर। तो ये आपका वर्टिकल हो गया कैमरा एक्सिस, सो दिस इज आवर कैमरा एक्सिस। अब हमारा फोटोग्राफ एग्जैक्टली वर्टिकल है, तो आपका ग्राउंड पॉइंट कैपिटल के मिलेगा यहाँ पे, एंड यहां पर मिलेगा स्मॉल के, दिस इज प्रिंसिपल पॉइंट कैपिटल स्मॉल के। और ये यहां से ये हो गया आपका पिक्चर प्लेन, तो दिस इज पीपी पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन पे आपका फोटोग्राफ बनेगा, और ये फोटोग्राफ बनेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ एफ, यानी यहां से यहां तक की दूरी है आपकी फोकल डिस्टेंस। सो एट द फोकल डिस्टेंस योर फोटोग्राफ इज फॉर्म, एंड यू आर टेकिंग द फोटोग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग डिफरेंट एलिवेशन। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है ए, सो दिस इज अवर समुद्र ग्राउंड। तो ये है हमारा पॉइंट ए पॉइंट की ऊंचाई है हमारे स्मॉल एच ए। सो एच ए इज द एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए। सिमिलरली अनदर पॉइंट इज देयर विच इज बी, एंड एच बी इज द एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी। तो आपका यहाँ से एलिवेशन ऊंचा है ये वाला, इसका एलिवेशन कम है। सो एच ए एंड एच बी आर द टू एलिवेशन ऑफ द टू डिफरेंट पॉइंट। अब इसका यदि फोटोग्राफ हम निकालेंगे तो ये कम ज्यादा ऊंचाई है इसकी, इसका फोटोग्राफ में ए की लोकेशन आपको यहां मिलेगी और बी की लोकेशन आपको यहां मिलेगी। तो प्रिंसिपल पॉइंट से दूरी इनकी अलग अलग है। अब यहां पर देखेंगे तो इसका एलिवेशन ज्यादा है, तो ये बी पॉइंट फोटो प्रिंसिपल पॉइंट से ज्यादा दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा दूर है। ए पॉइंट का एलिवेशन कम है,
तो यहाँ पे ए पॉइंट का डिस्टेंस ये जो है ये कम है यहाँ पे, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। अब इसके अंदर यदि हम लोग ए पॉइंट का सोचेंगे, सो यू विल गेट दिस एज एच माइनस एच ए, यहां से यहां तक की हाइट, और यहाँ पे बी पॉइंट का देखेंगे तो दिस यू विल गेट एच माइनस एच बी। अब इस पे से हम लोग यदि फार्मूला डिराइव करने का सोचते हैं, सो दे आर रिप्रेजेंटेड एट ए एंड बी ऑन द मैप, दिस ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। तो स्केल ऑफ द फोटोग्राफ एट एलिवेशन एच ए के लिए निकालेंगे हम लोग। सो एट फॉर पॉइंट ए यदि हमको स्केल निकालना है तो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, सो एस इज इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच ए करना पड़ेगा, बिकॉज एच ए इज द एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए। तो यहां पर ये जो स्केल है ये ए पॉइंट के लिए हो जाएगी, सो दिस इज एस ए, सो एस ए एफ इज एफ अपॉन एच माइनस एच ए हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम लोग बी पॉइंट का एलिवेशन निकालते हैं तो हियर स्केल फॉर पॉइंट बी वो हो जाएगी फिर से एफ अपॉन एच माइनस एच बी, जिसके पहले हमने फॉर्मूला देखा है। सो एच इज द एलिवेशन, लेकिन एच बी हो जाएगा यहाँ पे बी पॉइंट के लिए, बिकॉज एलिवेशन इतना है। सो दिस इज ऑल्सो बी। अब ये ए पॉइंट के लिए अलग स्केल है हमारी, बी पॉइंट के लिए अलग स्केल है हमारी। हालांकि फोटोग्राफ हमारा एक ही है, लेकिन अलग अलग हाइट के ऊपर पॉइंट होने की वजह से हमारी स्केल यहाँ पर चेंज हो रही है। सो इन जनरल यू कैन से दैट स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ निकालना है आपको, तो यू हैव टू राइट डाउन एट एस एच, यानी स्केल फॉर एलिवेशन एच is equal to f upon h minus h. So this again formula is the same, but only you have to see that this is the scale for elevation h. So sh is equal to f upon h minus h. That you have to remember for the scale of vertical photograph. So here the h बोले तो point का elevation, और capital H is the height of the camera above the ground, mean sea level, और f है हमारा फोकल डिस्टेंस। सो इन दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट एट द डिफरेंट एलिवेशन चेंजेस फॉर द वर्टिकल फोटोग्राफ। अब ये चेंजेस के हिसाब से हमको अलग अलग एलिवेशन की हाइट, लोकेशन ऑब्जेक्ट का, उसको डिटरमाइन करने के लिए कैलकुलेशंस करने होंगे। जो फोटोग्राफ निकाला उससे हमको मेजरमेंट एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर for the vertical photograph. Now here, if we consider that this vertical photograph, we are taking it for the different area. So from that also, we can calculate the distance between the 2 points. जैसा कि इसके पिछले केस में हमने देखा कि A पॉइंट की ऊंचाई h है और B पॉइंट की ऊंचाई h b है, तो ये दोनों पॉइंट में की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस, ये मुझे निकालते आना चाहिए। Now for calculation of this distance, we will take the help of coordinate geometry. अब ये coordinate geometry के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, so you can see here, तो ये मेरा ग्राउंड है, समझ, all this is the my ground and on the ground this is my point A. अब ये A पॉइंट का एलिवेशन कितना है मीन सी लेवल से h है, ये जमीन से मीन सी लेवल से ऊपर है A, and this is my point B. So this B point is h height of HB. तो ये मीन सी लेवल से एच बी इतनी ऊंचाई पर है, तो ये मेरी मीन सी लेवल हो गई, और इसके ऊपर मेरा कैमरा यहाँ रखा है मैंने, वो इज द एक्सपोजर स्टेशन ऑफ द कैमरा सेंटर। अब मैं यदि वर्टिकल फोटोग्राफ लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा कैमरा एक्सिस। अब ये कैमरा एक्सिस ग्राउंड पे जहां पे मिलेगा दैट विल बी द ओरिजिन ऑन द ग्राउंड, और ये ओरिजिन आपका यहाँ पर ये हो गया आपका पिक्चर प्लेन। सो दिस इज पिक्चर प्लेन। सो दिस पिक्चर प्लेन विल अपीयर एट द डिस्टेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस f। तो कैमरा से f दूरी पे आपका पिक्चर प्लेन के ऊपर फोटोग्राफ बनेगा। अब ये फोटोग्राफ कैसा बनेगा, सो एच ए इज द हाइट ऑफ द पॉइंट ए एंड एच बी इज द हाइट ऑफ पॉइंट बी। अब यहां से जब इसका फोटोग्राफ निकलेगा तो देखो ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से जो रे आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका शेष ए पॉइंट लोकेशन, और बी पॉइंट को देख रहे हैं हम लोग, तो ये इसका जो बी का रे आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज आवर पॉइंट बी। अब ये बी और ए का लोकेशन आपको फोटोग्राफ में मिल गया है, आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी, यानी 2 पॉइंट बी का लेंथ निकालना है। तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझेंगे कि ये के पॉइंट के ऊपर हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है के,
तो ये हमारा पिक्चर प्लेन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब ये एक्स एक्सिस को पैरेलल ये ए पॉइंट का लोकेशन जो है तो वो हो जाएगा डिस्टेंस एक्स ए और ये हो गया डिस्टेंस वाई ए एंड हियर एक्स बी एंड वाई बी। तो फोटोग्राफ के ऊपर आप प्रिंसिपल पॉइंट से एक्स ए और एक्स वाई ए यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। फोटोग्राफ पे से प्रिंसिपल पॉइंट के कंपेयर करके एक्स ए एंड वाई ए दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन द फोटोग्राफ, वो आप मेजर कर सकते हो। सिमिलरली एक्स बी और वाई बी यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी ऑन द फोटोग्राफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। सो एक्स बी एंड वाई बी दैट यू कैन मेजर फ्रॉम द फोटोग्राफ। तो किसी भी ग्राउंड का फोटोग्राफ आपने निकाला तो आप वो फोटोग्राफ से प्रिंसिपल पॉइंट के रिलेशन में उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अब यही कोऑर्डिनेट हमारे ग्राउंड पे भी आपके रिफ्लेक्ट होंगे जैसे कि वैसे। सो हियर द डिस्टेंस रिप्रेजेंटिंग एक्स ए, तो वो हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एक्स ए और यहां से ये वर्टिकल वाई एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर वाई ए। सिमिलरली हियर आल्सो एक्स बी एंड वाई बी। सो दीज आर इन द प्रोपोर्शन विद दिस फोटोग्राफ। तो जो हिसाब से इसका एलिवेशन होगा उसके हिसाब से उसकी स्केल आएगी और उसके प्रोपोर्शन में ये कोऑर्डिनेट आपके ग्राउंड पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। सो इफ ये यदि हम लोग कर सकते तो अभी आपका क्या होगा कि ये एक्स ए और ये स्मॉल एक्स ए ये हो गए आपके प्रोपोर्शन में स्केल के। सो हियर एज यू नो दैट स्केल इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये हमने देखा S इज इक्वल टू, सो मैप डिस्टेंस हमारा कितना है समझ लो यहाँ पर एक्स ए, सो स्मॉल एक्स ए डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस हमारा कैपिटल एक्स ए। तो ये कैपिटल एक्स ए यदि हमको निकालना है तो हाउ व्हाट विल हैपन, कैपिटल एक्स ए इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ए डिवाइडेड बाय स्केल, स्केल फॉर पॉइंट ए हमको बोलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कैपिटल एक्स ए और कैपिटल वाई है ये हम लोग निकाल सकते हैं यदि हमने कोऑर्डिनेट गिन लिए पॉइंट के फोटोग्राफ पर से, तो उन फोटोग्राफ को आप स्केल से कन्वर्ट कर सकते हो और ग्राउंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो हमारे को ये कैपिटल ए जो ग्राउंड पॉइंट है इसके लिए कैपिटल एक्स ए और कैपिटल वाई ए इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर बी पॉइंट के लिए भी कैपिटल एक्स बी एंड कैपिटल वाई बी ये दोनों में मिल जाएगा। तो फोटोग्राफ पे जो कोऑर्डिनेट है वो मेजर करके उसको स्केल से डिवाइड करके ग्राउंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो एक्स ए एंड वाई ए। तो ये करने के लिए हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा फिर। सो कैपिटल एक्स ए इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ए डिवाइडेड बाय स्केल। तो स्केल हमारी उल्टी हो जाएगी यहाँ पे बिकॉज स्केल इज इन द डिनोमिनेटर। सो स्केल हमारी होती है एफ अपॉन एच माइनस एच ए। सो एच माइनस एच ए गोज अप एंड फोकल लेंथ गो डाउन। तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा फिर एक्स ए इज इक्वल टू एच माइनस एच ए बोले तो एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए डिवाइडेड बाय एफ, यानी ये स्केल हो गई और एक्स ए। तो एक्स ए जो डिस्टेंस है वो फोटोग्राफ पे से गिन लो आप और उसको स्केल से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट कैपिटल एक्स ए। सिमिलरली कैपिटल वाई ए यू कैन कैलकुलेट एज स्मॉल वाई ए डिवाइडेड बाय स्केल, सो दैट इज एच माइनस एच डिवाइड बाय, डिवाइड किया हमने इसलिए। तो मीनिंग हियर इज हम लोग ग्राउंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स ए एंड वाई ए यू कैन कैलकुलेट। यदि आपको ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम है, so you can simply apply the formula for line coordinate यदि आपको मालूम है origin से, so you can calculate the distance by using the formula this. So xa minus xb square plus ya minus yb square whole under root. So you will get the distance between point A and B. So this formula we are using to extract the dimension length between the 2 point निकालना है। तो आपको पहले फोटोग्राफ पे से एक्स ए और वाई ए कोऑर्डिनेट गिनने पड़ेंगे एज कंपेयर टू प्रिंसिपल पॉइंट, और वो एक्स ए को स्केल से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल एक्स ए निकलेगा। तो ऐसा एक्स ए और वाई ए का करेंगे तो एक पॉइंट का हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्स ए और वाई ए। फिर एक्स ए और एक्स बी और वाई बी दूसरे पॉइंट का निकालेंगे, और ये दोनों पॉइंट के एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी मालूम है
तो फिर एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बी स्क्वायर होल अंडर रूट, इससे आप लोग लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो ए और बी में का जो डिस्टेंस है ये वाला इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज टू एक्सट्रैक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट फोटोग्राफ आपने निकाला तो फोटोग्राफ पे से आपको प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस कैसे गिनना और उसको स्केल से कैसे कन्वर्ट करना, एंड देन ग्राउंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, और ग्राउंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपको ग्राउंड का डिस्टेंस भी मिलेगा. सो दैट वी हैव सीन इन दिस. सो with this respect we will try to solve some of the problem for scale of the vertical photograph. So here the one problem is given: a vertical photograph was taken at an altitude of 1200 meter. So a vertical photograph was taken at an altitude of 1200 meter above the mean sea level. यानी यहाँ पे आपका कैमरा जो है वो 1200 मीटर ऊंचाई पर है. So here if we write down the given data, so we will write down the given data first. So in this ये दिया है आपको 1200 मीटर, दैट इज कैपिटल H इज इक्वल टू 1200 मीटर अबाउ MSL, मीन सी लेवल के ऊपर आपका कैमरा 1200 मीटर ऊंचाई पर है. डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, यानी S इज इक्वल टू निकालना है आपको, स्केल निकालना है फ्रॉम द टेरेन लाइंग एट एन एलिवेशन ऑफ 80 मीटर एंड 300 मीटर. तो एक टेरेन है हमारा 80 मीटर पे, सो हियर एलिवेशन HA is 80 meter and another is 300 meter. So HB, तो एक टेरेन है हमारा जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है, उसके लिए भी स्केल निकालना है. दूसरा टेरेन है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, उसके लिए भी स्केल निकालना है. एंड इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 15 सेंटीमीटर, so here focal length and F that is given as 15 centimeter. So that now we have to calculate. So as you know that the formula for scale of the vertical photograph हमने देखा था, so that is S is equal to F upon H minus H. So for first point for elevation HA is equal to 80 meter. So here you can write down for elevation of 80 मीटर, स्केल कितनी होगी? सो S 80, स्केल फॉर 80 मीटर एलिवेशन इज इक्वल टू F यानी 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय H यानी 1200 माइनस 80 मीटर बोले तो H है हमारा 80 है यहाँ पे. So you can solve this. So you will get this is equal to, so 1200 minus 80 and so here you will get 1 divided by 74.67. So here ये हमारा हो गया स्केल फॉर 80 मीटर टेरेन हाइट. So this is our answer, 1:74.76. 1:74.67. That is the scale for 80 मीटर टेरेन. 80 मीटर के एलिवेशन का जो टेरेन है उसके लिए हमारी 1:74.67 ये हो जाएगी हमारी स्केल. अब सिमिलरली ऐसा हम लोग 300 मीटर के लिए भी कर सकते हैं. So here you can write down for elevation of 300 meter, S 300 is equal to 15 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ है ऑलरेडी, एंड एक्सपोजर स्टेशन हाइट है हमारी 1200 मीटर से फोटोग्राफ निकाला आपने, और टेरेन की हाइट है 300 मीटर. सो दैट यू विल गेट हियर, सो 1200 minus 300 divided by 15, so you will get
1 divided by 60. So 1:60, that is the scale for 300 meter terrain. So these are the two answers. So it is very simple that if you know the height of the exposure station and the elevation of the ground, तो आप फोटोग्राफ की स्केल निकाल सकते हो. So that is the one problem we have solved. Now another problem we will consider here, which is given as a camera having focal length of 20 centimeter is used to take a vertical photograph of terrain having an average elevation of 1500 meter. That is given. What is the height above the sea level at which an aircraft must fly in order to get the scale of 1:8000? यानी यहाँ पे स्केल दिए आपको 1:8000. इसके हिसाब से आपको कितने ऊपर से हेलीकॉप्टर को कैमरा लेके उड़ाना पड़ेगा. सो एट विच एन एयरक्राफ्ट मस्ट फ्लाई, कितने ऊंचाई से हमारा हेलीकॉप्टर उड़ेगा कैमरा लेके, उसकी ऊंचाई निकालना है. दैट इज कॉल्ड एज फ्लाइट हाइट. हाइट ऑफ द फ्लाइट अबव मीन सी लेवल, वो हमको निकालना है यहाँ पे इस प्रॉब्लम. सो व्हाट इज गिवन डाटा हियर? सो वी विल राइट डाउन फर्स्ट गिवन डाटा. So the camera having focal length of 20 centimeters. So here f is equal to 20 centimeters is given. To take the vertical photograph of terrain having an average elevation of h दिया आपको average elevation, that is 1500 meter. Then what is the height above the mean sea level at which the aircraft must fly? यानी कैपिटल H हमको पूछा यहाँ पे. कैपिटल H is equal to required entity, height of the flying aircraft above the mean sea level, and to get the scale is 1:8000. Scale हमको दी है. So scale S is equal to 1:8000. So again you can use the formula for scale of the photograph. So scale of vertical photograph, that is S is equal to F upon H minus H. तो इस फॉर्मूले में स्केल हमको दी है. So that scale value is 1/8000. S is equal to 1/8000 लिखना पड़ेगा इसको. This is value is 1/8000. And focal length. So focal length is given as 20. And capital H निकालना है हमको. और minus height of the elevation of the ground, वो है 1500 मीटर. So here now we have to calculate the height of the flight. So you will solve this. So this goes up. So H minus 1500 is equal to 8000 into 20. ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. So here H minus 1500 is equal to, this is 16, 1, 2, 3, 4. So here you can calculate as H is equal to, so this is now 20 centimeter. So that we have to convert into meter. So this is divided by 100. So here 20 will get down here. So H is equal to 1600 minus 1500, 1600 minus 1500, and that will be get 100 meter. So here we have to run this. Sorry, what we have mistake here. ये आ गया 1600 हमारा, और ये है माइनस 1500. सो H इज इक्वल टू 1600 प्लस 1500 हो जाएंगे यहाँ. ये 1500 है हमारे, है ना. तो प्लस 1500, so it will be 3100. So H minus 1500 is equal to 1600 आ गया यहाँ पे. So H will be 1600 plus this goes out this side 1500. So you will get 3100.
सो आपकी हाइट ऑफ द फ्लाइट, सो एयरक्राफ्ट मस्ट फ्लाई एट द हाइट ऑफ 3100 मीटर, तब आपको स्केल मिलेगी 1:8000 की. सो दैट इज द आंसर, दैट हाइट ऑफ द फ्लाइट इज height of flight is 3100 meter. So in this way, by using the scale of the vertical photograph, we can calculate the various entities for this. So here another problem we will consider for this again. So information is given in the problem, that is a line AB 2000 meter long. So here at an elevation of 500 meter measures 8.65 centimeter on a vertical photograph. So here एक लाइन ए बी है 2000 मीटर की और जिसका एलिवेशन है 500 मीटर, वो 8.65 सेंटीमीटर की दिख रही है हमारे फोटोग्राफ के. फॉर विच द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ हमारा उस फोटोग्राफ के लिए 20 सेंटीमीटर का है. डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इन एन एरिया द एवरेज एलिवेशन ऑफ विच इज अबाउट 800 मीटर. तो 800 मीटर एलिवेशन के लिए फोटोग्राफ की स्केल क्या होगी, ये हमको यहाँ पे निकालना. सो वी विल फर्स्ट राइट डाउन द गिवन डाटा अगेन. So the line AB is 2000 meter long. So distance AB is equal to 2000 meter. And the elevation of it is 500 meter. So HA. 300 meter, 500 meter दिया है. And actually it measures 8.65 centimeter on the photograph. यानी फोटोग्राफ की जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज AB on the photograph, ये हो गया हमारा 8.65 सेंटीमीटर. Where the photograph at focal length is 20 सेंटीमीटर. तो F हमारा दिया है, F is equal to 20 सेंटीमीटर. यानी 2000 मीटर की जो लाइन है वो 8.65 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही जब हमने फोटोग्राफ लिया फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर वाले कैमरा से. अब ये ए बी जो लाइन है इसका एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन था 500 मीटर का. अब यदि आपका उसी फोटोग्राफ में यदि आपका एवरेज एलिवेशन 800 मीटर है तो फिर आपका स्केल ऑफ द फोटोग्राफ कितनी रहेगी, ये हमको निकालना है. सो डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ फॉर एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 800 मीटर. तो अब हमारा एच जो है एच बी, यू कैन से दैट इज 800 मीटर. तो एच बी के लिए एलिवेशन 800 मीटर है, तो फिर आपकी स्केल क्या होगी, स्केल इज अननोन. नाउ दैट वी हैव टू कैरी आउट हियर. अब हमारे यहाँ पे हमने देखा इसके पहले भी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्केल. वो स्केल इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस. तो मैप डिस्टेंस हमारा कितना है इस प्रॉब्लम में, वो है हमारा 8.65 यानी 8.65 और ग्राउंड डिस्टेंस है 2000. तो ये हो गई हमारी स्केल ऑफ द फोटोग्राफ. अब ये स्केल ऑफ द फोटोग्राफ के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्केल ऑफ द फोटोग्राफ का, वो होता है हमारा F अपॉन H माइनस H. अब ये फॉर्मूले में फोकल लेंथ हमको मालूम है 20 सेंटीमीटर. So you can write down that 8.65 divided by 2000 is equal to focal length है हमारी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय h हमको दिया नहीं है एंड HA is 500 मीटर. तो हमको अभी h निकालना है यहाँ से. So if you will solve this, so h minus 500 is equal to 2000 into 20 and divided by 8.65 is equal to, so we will solve this. So 2000 into 20 divided by 8.65, so that we will get
4624.27. सो h निकालेंगे यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, उसमें 500 ऐड हो जाएंगे उधर, तो 4624.27 प्लस 500 इज इक्वल टू प्लस 500, so it will 5124. तो हमारी हाइट निकल गई, h निकल गई हमारी. सो h इज नाउ नोन. अब ये h पे से हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है स्केल फॉर एलिवेशन ऑफ 800 मीटर HB से. सो हियर अगेन वी विल राइट डाउन S 800. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, F अपॉन H माइनस H, सो HB हो जाएगा यहाँ पे. सो फोकल लेंथ है हमारी 20 सेंटीमीटर और H है हमारा 5124 एंड माइनस HB हमारा है 800. एलिवेशन हमारा ग्राउंड पे 800 है. सो हियर S 800. Scale for 800 meter elevation objects that you can calculate. So 5124 minus 800. So it will give you 1 upon 216.2. So scale is 1:2 216.2 meter. सो 800 मीटर टेरेन के लिए आपके फोटोग्राफ की स्केल 1:2 216.2 हो जाएगी. यहाँ पर 500 मीटर के टेरेन के लिए यूज करेंगे तो आपकी स्केल यहाँ पर अलग है. सो दैट स्केल यू आर नॉट एट कैलकुलेटेड बट इज डिफरेंट. सो इन दिस वे यदि आपके ऑब्जेक्ट का एलिवेशन चेंज होता है तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्केल आपकी चेंज होती है वर्टिकल फोटोग्राफ की, और दैट वो हमको हर बार कैलकुलेट करनी होती है. डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली you are able to calculate the distances or measurement or elevation of the different objects. So that is clear from this problem. So therefore in this lesson we have seen that what is the scale of the vertical photograph, and then we have seen how the distance between the 2 points is calculated from the photogrammetry. तो हमने XA और YA, XB और YB ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालने के लिए that we have seen. So from that distance XA minus XB square plus YA minus YB square whole under root, इससे हम लोग हमारी लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं. और ये भी हमने देखा कि भाई अलग अलग एलिवेशन के लिए अलग अलग स्केल होती है. सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द फ्लाइट, और हाउ यू कैन डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, और हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस between the 2 points. So that problem we have solved in this lesson. Now more information which is very interesting again, that we will see in the next lesson number 3. So thank you for watching this video lecture series on Survey 2.